Today we are beginning with the third chapter of your value education, Gold in the Soil. Ricky was a young boy who would always help his grandfather in the fields whenever he went to his native village. His grandfather used to feel very happy and would often tell this to his friends. The land was fertile, so he could grow the vegetables that he loved. रिकी वॉज अ यंग बॉय जो अपने दादाजी के पास अपनी नेटिव विलेज, मतलब जैसे आप में से कुछ लोगों की नेटिव विलेज पंजाब में होगी, कुछ लोग की किसी और स्टेट में होगी, अपनी नेटिव विलेज में दादाजी के पास जब भी जाता था तो उनके साथ उनकी फील्ड्स में हेल्प करवाता था, जिसकी वजह से ग्रैंडफादर बहुत खुश होते थे और अपने फ्रेंड्स को भी बताते थे। और क्योंकि लैंड वॉज वेरी फर्टाइल तो वेजिटेबल्स भी वहाँ पे ग्रो होती थी जो उसे पसंद होती थी। He grew corns, beans, peas, cucumbers, and garlic. Nobody in the neighboring land could grow bigger flowers than his grandfather. When Ricky worked with him, he told an interesting story of a man and his wife who moved to a new farmland with their 3 sons. His name was Joe. They were welcomed by all in the community and gradually settled there. उनके नेबरहुड में एक इंटरेस्टिंग मैन कॉल्ड जो एंड उसकी वाइफ रहने के लिए आए विद देयर 3 sons, और उनके बारे में इनकी बात हो रही थी आपस में, दादाजी की और रिकी की। अ नियर बाय फार्मर टोल्ड जो दैट देयर वॉज गोल्ड इन द सॉइल ऑफ हिज न्यू फार्म. जो टुक दैट स्टेटमेंट वेरी सीरियसली as if actually there was gold in the land. There was tremendous happiness in the family and they thought that the father along with his 3 sons will work hard to dig out gold from the new land. किसी नियर बाय फार्मर ने जो को जो भी नया नया आया था वहाँ विलेज में उसको बोल दिया कि तेरे फील्ड में गोल्ड है. उसने वो सच मान लिया जो ने, और वो बहुत खुश हुई फैमिली और वो डिग करना शुरू हो गए फॉर दी गोल्ड. His sons actually took charge of their personal venture right on their own land. Each one of them was preparing plans in his mind so as what to do with the gold which they would get. They adopted quite a professional approach for digging the land. उनके जो बेटे थे, जो न्यू फार्मलैंड में आए थे, जिनके 3 बेटे थे, उन्होंने इतना सीरियसली लिया और सोचना भी शुरू कर दिया कि हम उस गोल्ड को जो मिलेगा उससे क्या करेंगे, और एक प्रोफेशनल तरीके से दे स्टार्टेड डिगिंग द लैंड, खोदने लग गए. दे टुक अ सर्टन पीस एंड स्टार्टेड फ्रॉम वन कॉर्नर टिल दे फिनिश्ड अप टू द एंड. They decided to start from one side and then go back to the other direction. It was really fun to dig the land for gold. This practice continued for about 6 months and they still weren't through digging the whole land. 6 महीने तक वो डिग करते रहे, एक कोने से दूसरा कोने तक, और लेकिन उनको अभी तक कोई गोल्ड नहीं मिला था. Meanwhile, Joe thought to make use of the time and resources. He started leveling the soil which was upturned thoroughly in this process and thought he would plant some crops in that area. अब इतनी खुदाई तो कर ही ली थी, मिट्टी की प्लोइंग हो गई थी, तो जो ने सोचा कि क्यों ना अब इसमें मैं प्लांट्स ही ग्रो करना शुरू कर दूं. He planted various crops such as corn, tomatoes, potatoes and onions. His sons continued tireless job to dig the soil so as to find gold. As more soil was available, more crops were planted. जितना वो बेटे खोदते गए, साथ के साथ फादर वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करने लग गया. Interestingly, Joe had never done any farming before and it had always been a dream for him to do so. इससे पहले कभी जो ने फार्मिंग नहीं करी थी, पर उसका ड्रीम था. Joe and his wife were surprised to see the fast growth of the crops and soon different crops got ready to be harvested. But they found that there was more yield of crops than he and his family could ever eat. क्रॉप्स ग्रो हुए, बहुत अच्छी हार्वेस्ट हुई, लेकिन जितना उनको चाहिए था उससे ज़्यादा ग्रो हुआ. He was then suggested by his neighbor that he should set up a vegetable store. They liked the idea. अब ज़्यादा हो गया, जितना उनको रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा उनका ग्रो हुआ क्रॉप. उनको नेबर का आइडिया अच्छा लगा कि वेजिटेबल स्टोर खोल लेते हैं.
दे वर क्वाइट सक्सेसफुल इन दिस न्यू वेंचर. इस न्यू बिजनेस में बहुत अच्छा सक्सेस रहा. गुड मनी वॉज अर्नड इन दिस मैनर. द होल फैमिली वॉज टोटली डिवोटेड टू मेक देयर बिजनेस फ्लरिश. न्यू वेजिटेबल बिजनेस को फ्लरिश मतलब फैलाने के लिए पूरी फैमिली लग गई. दिस एक्सरसाइज कंटिन्यूड फॉर मेनी ईयर्स एंड एज अ रिजल्ट जो एंड हिज फैमिली बिकेम क्वाइट वेल्दी. इस वजह से वो अमीर भी हो गए. द सन्स वर स्टिल वर्किंग ऑन द लैंड इवन आफ्टर दे हैड फिनिश्ड द इंटायर डिगिंग. पूरा जितना उनका लैंड था सारा डिग करने के बाद भी बेटे डिग करते गए. दे वुड स्टार्ट वंस अगेन फ्रॉम द ओरिजिनल कॉर्नर इन द परस्यू टू फाइंड द गोल्ड. सिर्फ एक गोल्ड फाइंड करने के चक्कर में बेटे पूरा लैंड डिग करते ही गए. दे वर एनकरेज्ड फॉर फर्दर स्टडीज ऑल्सो. दे ऑलवेज यूज टू थिंक ऑफ गेटिंग द गोल्ड. उनको बस यही था कि हम खोदेंगे और हमें गोल्ड मिलेगा. द नेबर वॉज greatly surprised on their thinking. He then made it clear that by saying so he meant that the land had such rich and fertile soil that whatever is planted would give returns like gold. Now they realized what the fact was. अब जिस नेबर ने उनको बोला था कि तुम्हारी ये ज़मीन में तो सोना है, उसने अब क्लियर किया बात को कि उसने बोला था कि लैंड इतनी रिच और फर्टाइल है कि कुछ भी यहाँ उगाओगे तो तुम्हें गोल्ड के जैसा उसमें से रिटर्न मिलेगा. अब इनको अपनी फैक्ट रियलाइज़ हुआ. इन दिस वे द सन्स ऑल्सो गॉट इंस्पिरेशन ऑफ वर्किंग हार्ड एज दे हैड विजन्स of what money could do for them and did not focus on the money itself. बेटों को भी रियलाइज़ हुआ, इससे इंस्पिरेशन मिली कि सिर्फ पैसे पे फोकस करने के बजाय पैसे से क्या हो सकता है उस पे फोकस करना चाहिए. जोस 3 sons were inspired with the possibility of finding gold in the soil. In fact, to meet all our challenges and setbacks, we need some inspiration to motivate ourselves. Thus, we should never give up. हमें हमेशा लाइफ में चैलेंजेस और कोई भी सेटबैक्स को हमेशा के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसके लिए हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेट करना अपने आप को बहुत ज़रूरी है. हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए. सो यू शुड कीप इन माइंड इंस्पिरेशन इज़ नीडेड फॉर हार्ड वर्क.